السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے J-10C کی باقاعدہ انڈکشن سے متعلق خبریں آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم J-10 ایئر کرافٹ کی مکمل ہسٹری، اس کے تمام ویریئنٹس اور خاص طور پر J-10B اور J-10C میں فرق پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ J-10C کے ویپنز، سسٹمز اور فیچر سمیت پاک فضائیہ کی ایکوزیشن کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ بدلتے جنگی تقاضوں اور ٹیکنالوجی میں انوویشن کی وجہ سے دنیا کے تمام طیارہ ساز ممالک اپنے فائٹر ایئر کرافٹس کو اپ گریڈ کرتے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں F-15، F-16، یورو فائٹر ٹائفون، JF-17 تھنڈر اور گریپن طیاروں کے علاوہ J-10 کی مثال قابل ذکر ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نہ صرف آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ J-10 میں کتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہیں، بلکہ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ اس کے بیس ورژن کو پاک فضائیہ کی طرف سے کیوں ریجیکٹ اور سی ورژن کو کیوں خریدا گیا ہے۔ آخر اب تک اس ایئر کرافٹ میں کیا چینجز آ چکی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس کے لیے آپ کو ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنا پڑے گی۔ J-10 ایک ملٹی رول سنگل انجن فائٹر جیٹ ہے جس کو چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن اور 611 انسٹیٹیوٹ نے مل کر ڈیولپ کیا ہے۔ اس کو چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کی طرف سے نیکسٹ جنریشن فائٹر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس سے سروس میں موجود آبسلیٹ J-7 اور Q-5 طیاروں کو ریپلیس کیا جانا تھا۔ اس کا نوز Su-27 کی طرح دکھتا ہے، جبکہ ریکٹینگولر ایئر انٹیک اس پر موجود ہے۔ بیس ورژن پر AL-31F رشین انجن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس پر لارج ورٹیکل فن پلس F-16 سٹائل ورٹیکل سٹیبلائزر کا استعمال کیا گیا ہے، جو اس کو ہائی اینگل آف اٹیک کے دوران بہتر سٹیبلٹی فراہم کرتا ہے۔ اس کا فیوزلاج اسرائیلی لاوی سے لمبا دکھائی دیتا ہے۔ J-7E کے ڈبل ڈیلٹا ونگ کے برعکس اس پر انورٹڈ گل ونگز یعنی اپر انر پورشن کچھ ڈاؤن ورڈ نظر آتے ہیں۔ J-10 پروجیکٹ کو 1984 میں J-9 ٹیل لیس ڈیلٹا ونگ کینارڈ ایئر کرافٹ سے حاصل ہونے والے تجربات کی بنیاد پر شروع کیا گیا، جس کو 1980 میں J-7C پروجیکٹ کے بدلے میں کینسل کر دیا گیا تھا۔ J-10 کا ابتدائی ماڈل میراج 2000 کے سٹائل کی انٹیک استعمال کرتا تھا، جس میں بہتر ہائی سپیڈ پرفارمنس کے لیے سینٹر شاک کون کا استعمال کیا گیا، جبکہ لاوی سٹائل کا ٹیل سیکشن تھا، جس کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ J-10 کا اسرائیلی کینسل فائٹر پروجیکٹ لاوی سے کوئی کنیکشن ہے، حالانکہ دونوں چائنیز اور اسرائیلی اس کا انکار کر چکے ہیں۔ J-10 کی ڈیولپمنٹ بالکل بھی سموتھ نہیں رہی۔ ایک فل سکیل موک اپ 1991 میں تیار کیا گیا۔ فرسٹ پروٹوٹائپ کو 1996 میں مقامی WS-10-8 ٹربو فین انجن سے پاورڈ کر کے فلائی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ تاہم اس مقامی انجن کی ڈیولپمنٹ کو شدید مشکلات کا سامنا رہا، جس کی وجہ سے ایئر کرافٹ کے ریئر فیوزلاج اور انجن انٹیک کو ری ڈیزائن کرنا پڑا تاکہ WS-10 کے متبادل AL-31FN کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے۔ لہٰذا 15 ماہ کی تاخیر کے بعد پہلا پروٹوٹائپ جون 1997 میں رول آؤٹ کیا گیا۔ اس نے 23 مارچ 1998 کو فرسٹ فلائٹ لی۔ ابتدائی طور پر ٹوٹل 6 پروٹوٹائپ تیار کیے گئے، جبکہ بعد میں 3 مزید بھی بلڈ کیے گئے، جن کا مقصد ایئر کرافٹ کو مختلف سٹیٹک اور فلائٹ ٹیسٹ سے گزارنا اور پروجیکٹ کے آگے بڑھنے کے تحت ضروریات بتائی گئی۔ J-10 کے فلائٹ ٹیسٹ 2003 کے آخر میں مکمل ہوئے۔ J-10 کو گزشتہ 18 برسوں کی ڈیولپمنٹ کے دوران بہت سی تبدیلیوں سے گزارا گیا، جس میں ایک میجر ری ڈیزائن نے اسے ابتدائی روایتی لے آؤٹ سے ایک ایئر سپیریئرٹی فائٹر، جبکہ اب سیمی اسٹیلتھ ملٹی رول فائٹر میں بدل دیا ہے۔ ان چینجز کی وجوہات کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طیارے کو اب سابقہ سوویت ایرا کے MiG-29 اور Su-27 کی بجائے امریکی F-15 اور F-18 کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نئے ڈیزائن میں ایڈوانسڈ ایویونکس کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں گلاس کاکپٹ، ایک وائڈ اینگل ہڈ، 2 مونوکروم اور ایک کلر ملٹی فنکشن ڈسپلے، ہیلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم، ARW9101A ریڈار وارننگ ریسیور، ٹائپ 634 ڈیجیٹل فلائی بائی وائر سسٹم، ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم، مشن مینجمنٹ سسٹم اور ڈیٹیچبل ان فلائٹ ریفیلنگ پراپ شامل ہیں۔
J10 के बेस वर्जन पर टाइप 1473 रेडार का इस्तेमाल किया गया, जिसकी सर्च रेंज 120 किलोमीटर और ये एक वक्त में 4 से 6 टारगेट्स को ट्रैक और 2 को सिमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। ये रेडार इसराइली एल्टा M203 पर बेस था, जो कि लावी के लिए बनाया गया था। वाज़ेह है कि अभी हम J10 के बेस वर्जन की बात कर रहे हैं। इस पर वाइड वैरायटी ऑफ न्यूली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की सलाहियत मौजूद थी, जिसमें PL8 इंफ्रारेड गाइडेड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और मीडियम रेंज PL12 एक्टिव रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल के अलावा टोटल 11 हार्ड पॉइंट्स पर कई एयर टू ग्राउंड वेपन्स के अलावा KDC-01A फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड लेजर डेजिग्नेशन पार्ट कैरी की जा सकती है। बाद में ट्विन रेल मिसाइल लॉन्च पायलट डेवलप किया गया, जिससे PL12 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की तादाद 2 से बढ़ाकर 4 करने में मदद मिली। J10 को 127 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले रशियन साख्ता AL-31FN टर्बोफैन इंजन से पावर्ड किया गया, जो कि बुनियादी तौर पर Su-27 और J11 में इस्तेमाल होने वाले AL-31F का मॉडिफाइड वर्जन है। रूस ने इस इंजन की चीन में लोकल प्रोडक्शन की इजाज़त चीन को ना दी, जिस पर चीन ने मकामी WS-10 इंजन से J11 सीरीज को पावर किया। कुछ मगरबी दिफाई तजियाकार J10 को F-18 के खिलाफ मनूवरेबिलिटी के तनाजुर में एक सीरियस चैलेंज करार देते हैं। बेस वर्जन का ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वेट 18,600 किलोग्राम, हाई ऑल्टीट्यूड पर टॉप स्पीड मार्क 2 और सी लेवल पर स्पीड मार्क 1.2 बताई गई है। इसको टेक ऑफ के लिए 400 मीटर डिस्टेंस की जरूरत है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 59,000 फीट या 18,000 मीटर है। J10 के बेस वर्जन के बाद फिर A वर्जन में इम्प्रूव ग्लास कॉकपिट, अपग्रेडेड फायर कंट्रोल रेडार जो 4 PL12 एयर टू एयर मिसाइल फायर कर सकता है, इसका इस्तेमाल किया गया। बाद में इसका ड्यूल सीट वेरिएंट J10S, फिर J10B और फिर J10C मुतारिफ करवाए गए, जिन पर हम आगे चलकर तफसीलन बात करेंगे। याद रहे कि इब्तदाई J10 वर्जन में YJ-83, जिसको C-802 भी कहा जाता है, उसको फायर करने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। J10 के तमाम तैयारों को A वर्जन पर अपग्रेड कर दिया गया, जबकि इसकी प्रोडक्शन 2014 तक जारी रही, जिसको बाद में J10B पर स्विच कर दिया गया। तमाम J10A तैयारों को सितंबर 2018 में मंजर आम पर आने वाली तस्वीर के मुताबिक PL10 हाई ऑफ बोर साइट एयर टू एयर मिसाइल से लैस कर दिया गया। J10A को पहली मर्तबा इंटरनेशनल मार्केट में फरवरी 2016 को सिंगापुर एयर शो में प्रमोट किया गया। इस एयर शो में FC-20 के नाम से इस तैयारे को पेश किया गया। ताहम एक फॉरेन इंजन और 4th जनरेशन होने की वजह से इसको कोई खातिर खा रिस्पॉन्स ना मिल सका। J10S एक एडवांस ट्रेनर है, जिसमें फ्यूजलाज को थोड़ा स्ट्रेच किया गया है, जबकि बबल कनोपी, जिसको सिंगल पीस के तौर पर ओपन किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। ये बबल कनोपी रेयर सीट पर बैठे पायलट को 360 डिग्री आउटसाइड व्यू देती है। J10S की डोर्सल स्पाइन इनलार्ज दिखाई देती है, जिसका मकसद दूसरी सीट की वजह से डिस्प्लेस होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स को अकोमोडेट करना है। इस वर्जन की फर्स्ट फ्लाइट 26 दिसंबर 2003 को ली गई। J10S को अगरचे J10 के पायलट्स के ट्रेनर के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन इसके बारे में ये स्पेकुलेट किया गया कि इसको अटैक वर्जन या फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लस एंटी रेडिएशन एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। ताहम हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त J10S, J10B और C के पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अप्रैल 2021 में मंजर आम पर आने वाली तस्वीर में J10S को चाइनीज एयरफोर्स की फ्लाइट एकेडमी में ट्रांसफर किया गया है। J10 के इम्प्रूव्ड वर्जन J10B ने फर्स्ट फ्लाइट 23 दिसंबर 2008 को ली और इसको रशियन AL-31FN से पावर्ड किया गया। इस वर्जन में की गई इंप्रूवमेंट्स में डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट में बम का एडिशन, जिससे न सिर्फ वजन कम हुआ बल्कि इससे इसकी RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन में कमी आई। इस तरह का डिजाइन इससे पहले JF-17 में भी टेस्ट किया गया। B वर्जन में कनोपी के सामने मकामी तैयार करदा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की तनसीब, एक वाइट इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉब लाइट को एयरक्राफ्ट की नोज की स्टारबोर्ड साइड पर नस्ब किया गया। B वर्जन में JF-17 स्टाइल ग्लास कॉकपिट, जिसमें वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड्स अप डिस्प्ले और 3 लार्ज कलर मल्टी फंक्शन डिस्प्ले मौजूद हैं। नई IRST की बदौलत J10B को दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को पैसिव डिटेक्शन की सलाहियत हासिल हुई है, जो इसको दौरान जंग निस्बतन ज्यादा स्टेल्थी बनाती है।
बी वर्जन में नया फायर कंट्रोल रेडार नस्ब किया गया है जो कि एक एक्स बैंड पीसा रेडार है और इसको चीन की 607 इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। ये रेडार 10 टारगेट्स को एक वक्त में ट्रैक और 4 को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। ये रेडार अपनी नोयत का पहला चाइनीज रेडार था जिसको चाइनीज एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया गया। इस रेडार की बदौलत J-10B को स्ट्रॉन्गर मल्टी टारगेट इंगेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर सलाहियत हासिल हुई। बी वर्जन के बारे में इब्तदाई तौर पर AESA रेडार का फैसला किया गया था जिसको 14th इंस्टीट्यूट तैयार कर रही थी। ताहम एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन के वक्त ये रेडार रेडी नहीं था जिसकी वजह से पहले बयान किया गया रेडार बी वर्जन में इस्तेमाल किया गया। एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर एंटेना कैनार्ड की फ्रंट पर बी वर्जन के प्रोटोटाइप 1035 पर देखा गया था। बी वर्जन में वर्टिकल फिन की टिप को रीडिजाइन किया गया था जिसके लॉन्ग कंपार्टमेंट में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर हाउस की गई हैं और ये फ्रेंच मिराज 2000 से मुमासलत रखती है। इसके अलावा रेयर फेसिंग मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को पैराशूट बूम के नीचे देखा जा सकता है। अलबत्ता बी वर्जन के कुछ इब्तदाई यूनिट्स में ऐसा नहीं था। वाज़ेह है कि इसी किस्म के मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को थंडर पर भी टेस्ट किया गया था। J-10 के बी वर्जन पर रैम यानी रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल, इंजन इनलेट और विंग लीडिंग एजेस पर RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने की भी इतलात है। बी वर्जन में ये तमाम तरह की इम्प्रूवमेंट से पता चलता है कि इसको न्यू जनरेशन के इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इक्विप किया गया है जो हाई स्पीड डाटा बस से कनेक्टेड है। इससे इस एयरक्राफ्ट का मिशन भी एयर सुपीरियरिटी से मल्टी रोल क्लोज एयर सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट में बदल दिया गया। J-10B एयर सुपीरियरिटी मिशन में नॉर्मली 6 एयर टू एयर मिसाइल जिनमें 4 PL-12 और 2 PL-8 या PL-10 शामिल हैं वो कैरी कर सकता है। वाज़ेह है कि 4 PL-12 ड्यूल मिसाइल लॉन्च रेल्स पर कैरी किए जाते हैं। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि बी वर्जन PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है या नहीं। क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस में ये 2 AGM-88A एयर टू ग्राउंड मिसाइल या फिर 2 G500 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स या 2 नए G500B 500 किलोग्राम वजनी LGBs कैरी कर सकता है। 2 YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल में कैरी किए जा सकते हैं। बी वर्जन पर लेजर डेजिग्नेटर पार्ट KDC-01A और KRKL 700A इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर इंजन इनलेट के नीचे कैरी की जा सकती हैं जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियत को इनहेंस करती हैं। J-10B को ओवरऑल अमेरिकन F-16 ब्लॉक 50 के हमपला करार दिया जाता है। मकामी WS-10B टर्बोफैन इंजन को प्रोटोटाइप 1035 पर 2011 में टेस्ट किया गया था। मार्च 2013 में प्रोटोटाइप 1031 पर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर एंटेना कैनार्ड 4 प्लेन पर इंस्टॉल है जो इससे पहले 1035 पर नस्ब किया गया था। J-10B की सीरियल प्रोडक्शन 2013 में आखिरकार स्टार्ट हुई। J-10B की डिलीवरीज 2014 में शुरू हुई। इसी असना में इसके अपग्रेडेड वेरिएंट J-10C विद AESA रेडार की डेवलपमेंट शुरू कर दी गई जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। सितंबर 2015 में मंजर आम पर आने वाली तस्वीर में बैच 1 के J-10B तैयारों के 2 यूनिट्स को मकामी WS-10B इंजन से पावर्ड किया गया जिससे ये अखज़ किया गया कि ये इंजन अब J-10C के रिमेनिंग बैचेस को पावर करने के लिए तैयार है। J-10B को ऑफिशियली जुहाई एयर शो 2016 के मौके पर अनवील किया गया जिसमें ये ड्यूल PL-12 मिसाइल लॉन्च रेल्स पर कैरी किए हुए था। दिसंबर 2017 में J-10B प्रोटोटाइप 1034 पर WS-10B टर्बोफैन इंजन को टेस्ट किया गया जो स्टेल्थ TVC यानी थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल से इक्विप्ड था। जून 2013 में अफवाहें मंजर-ए-आम पर आने लगी कि एक फुल स्टैंडर्ड मॉडल यानी J-10C अंडर डेवलपमेंट है जिस पर 5th जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि AESA रेडार इम्प्रूव कॉकपिट का इजाफा किया जाएगा। J-10C ने फर्स्ट फ्लाइट 31 दिसंबर 2013 को ली जबकि इसको रशियन साख्ता AL-31F सीरीज के ब्लॉक 3 इंजन से इक्विप किया गया। J-10C को ऑफिशियली पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 90th एनिवर्सरी परेड में अगस्त 2017 को अनवील किया गया था। नवंबर 2017 में मंजर आम पर आने वाली इमेजेस में J-10C पर S-740 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स को इंजन एयर इनटेक के दोनों अतराफ और वर्टिकल फिन की टिप पर देखा गया था जिसको नए J-10C के लिए तैयार किया गया।
जुलाई 2019 में मंजर आम पर आने वाली मालूमात के मुताबिक J-10C को WS-10B मकामी टर्बोफैन इंजन से पावर्ड कर दिया गया और ये बैच 4 के एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल किया गया, ताहम इस पर TVC नोजल का इस्तेमाल नहीं हुआ। बाद में दिसंबर 2019 और जून 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक J-10C के बैच 5 और 6 को WS-10B से पावर्ड करके इसकी प्रोडक्शन जारी थी। J-10C के पायलट्स अमरीकी साख्ता जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम की तरह के नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी बदौलत PL-10 एयर टू एयर मिसाइल की हॉब्स यानी हाई ऑफ बोर साइड सलाहियत को ऑप्टिमम लेवल पर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। J-10C के वेपन्स की बात करें तो इस पर एयर टू एयर कन्फिग्रेशन में 4 लेटेस्ट PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल या फिर 4 ही PL-12 के अलावा 2 PL-10 हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल को कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। एयर टू ग्राउंड कन्फिग्रेशन में J-10C को सुपरसोनिक रैम जेट पावर्ड YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल से लैस किया जा सकता है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर बताई गई है। JG-500 लेजर गाइडेड बॉम्ब J-10C एंटी शिप रोल में KD-88A को फायर कर सकता है। इसकी रेंज 180 किलोमीटर है, जबकि इस मिसाइल के ए वर्जन में इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये रेंज और साइज के एतबार से YJ-83 की तरह ही लगता है। इसके नए लॉन्ग रेंज KD-88C वर्जन के बारे में इतलात हैं कि ये चाइनीज एयरफोर्स की सर्विस में शामिल हो गया है। एंटी शिप में दूसरा मिसाइल YJ-83K है जो 180 किलोमीटर रेंज रखता है। इस मिसाइल के भी 2 नए लॉन्ग रेंज वर्जन विद न्यू सीकर और बेहतर एंटी जैमिंग सलाहियत के साथ चाइनीज एयरफोर्स में शामिल किए जा चुके हैं। नए वर्जन की रेंज 290 किलोमीटर बताई जाती है। J-10C इन मिसाइल्स के अलावा 2 पार्ट्स KL-700A इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर और KJ-DC-01A लेजर डेजिग्नेशन पार्ट को इंजन एयर इनटेक के नीचे कैरी कर सकता है। फ्रेंड्स, J-10C के इब्तदाई बैच प्रोटेक्शन यूनिट्स को रशियन इंजन से पावर्ड किया गया था, जो 27,500 पाउंड यानी 122 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो हम कुछ सोर्सेज ने J-10C पर नस्ब वर्जन की थ्रस्ट 127 किलो न्यूटन भी कोट की है। बाद के बैच प्रोटेक्शन यूनिट्स को चीन के मकामी WS-10B इंजन से पावर्ड किया गया है, जो इसको 31,000 पाउंड यानी 137.8 किलो न्यूटन थ्रस्ट फराहम करता है। गो के पहले ही रशियन इंजन से इस एयरक्राफ्ट की थ्रस्ट टू वेट रेशो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की लीग में बहुत बेहतर है, लेकिन WS-10B इंजन से ये थ्रस्ट टू वेट रेशो और भी बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ ये इंजन यकीनी तौर पर इसके रडार समेत दीगर सिस्टम्स को ऑप्टिमम लेवल पर यूज करने में पावर फराहम करने की भरपूर सलाहियत रखता है। याद रहे कि मार्च 2021 में सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक WS-10B इंजन से चीन के हैवी ट्विन इंजन J-16 एयरक्राफ्ट को पावर्ड किया गया था, जो इस इंजन की सलाहियत और चाइनीज एयरफोर्स के इस पर एतमाद की अक्कासी करता है। J-10C पर नैनजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का KLJ-X एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार नस्ब है। इस रडार पर 1200 ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात ऐड करता चलूँ कि थंडर ब्लॉक 3 के रडार पर 1000 TRM, जबकि रफाल के RBE-2 रडार पर 838 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स मौजूद हैं। ताहम J-10C के रडार पर इससे ज़्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं हैं। नवंबर 2021 में जारी होने वाली गैर सरकारी गैर हतमी रिपोर्ट्स के मुताबिक J-10D का प्रोटोटाइप चाइनीज कंपनी ने तैयार कर लिया है और इसके बारे में तवक्कुआत हैं कि ये 2022 में फर्स्ट फ्लाइट लेगा, लेकिन ख्याल रहे कि ये इंफॉर्मेशन गैर हतमी और गैर मुसद्दक़ा ज़राए से सामने आई है। गो के J-10 का B और C वर्जन देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इस सेगमेंट को सुनने के बाद आप दोनों B और C वर्जन को बज़ाहिर देखकर पहचान सकेंगे। J-10B और C में बुनियादी तौर पर 3 फ़र्क हैं, जिसमें एक इंटरनल और 2 एक्सटर्नल हैं। पहला तो ये कि C वर्जन में AESA रडार का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन B वर्जन को भी अब इस पर अपग्रेड कर दिए जाने की इतलात है।
J10C पर एक एक्स्ट्रा डेटा लिंक एंटेना मौजूद है जिसको स्पाइन पर वर्टिकल फिन के पास देखा जा सकता है। यह एंटेना गालबन PL-15 एयर टू एयर मिसाइल की मिड कोर्स अपडेट के लिए इस्तेमाल होता है। J10C पर बजाय दूसरा मेजर फर्क इसके पैराशूट बूम के नीचे रेयर फेसिंग मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की बजाय इस पर S740 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम इंजन एयर इनटेक के दोनों अतराफ और वर्टिकल फिन की टिप पर देखने को मिलता है। लिहाजा आप दोनों वर्जन को देखकर फ्रंट पर इंजन इनटेक के दोनों अतराफ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और 3 एंटेना देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये J10C है, जबकि B वर्जन की स्पाइन पर 2 एंटेना और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम टेल सेक्शन पर देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो J10C अक्वायर किए हैं वो चाइनीज मकामी इंजन WS-10B से पावर्ड हैं। लिहाजा एक तो इसमें कोई रशियन स्प्रिंग्स अटैच नहीं होंगी, जबकि ये पावर के एतबार से भी रशियन इंजन से बेहतर बताया जाता है। फिर पाकिस्तान इस इंजन की ओवरहॉल और रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी चीन की मदद से जल्द कायम करने की पोजीशन में होगा। ऑल इन ऑल J10C थंडर ब्लॉक 3 से बेहतर रेडार, ज्यादा पावरफुल इंजन और मीडियम वेट एयरक्राफ्ट होने की वजह से बेहतर रेंज और बेहतर वेपन पेलोड कैरी कर सकता है, जबकि इसके साथ आने वाले वेपन पैकेज भी ब्लॉक 3 से बेहतर मालूम होते हैं। फ्यूचर के अंडर डेवलपमेंट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी J10C पर इंटीग्रेशन और एक्विजिशन के नुक्ता नज़र से आसानी से दस्तयाब और काबिल इस्तेमाल होंगे। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को ज्यादा तादाद में चीन से अक्वायर करे और स्पेशल केस सिनेरियो में TOT के तहत इसकी मकामी सतह पर तैयारी के चांसेस भी मौजूद हैं। ताहम ख्याल रहे कि थंडर एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है और वो अपना रोल बखूबी निभा रहा है। उम्मीद है J10 पर आपको ये तफसीली वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सी नई मालूमात जानने का मौका मिला होगा। अगर आप F-16 की एवोल्यूशन के मुतालिक जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।